Good morning, children. Today we are going to study about the strength of acids and bases. Before that, we have already discussed about the properties of acid and properties of bases. And today we are going to study another topic, that is the strength of acids and bases. So strong, what are strong and weak acids? So as defined earlier, water acid, an acid is a substance which when dissolved in water gives which type of ions? Yes, it gives hydronium ion in the solution. Greater the amount of hydronium ion produced in the solution, stronger is the acid. जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोनियम आयन्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, एसिड होगा. ओके, बट एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट कम्प्लीटली. मीन्स जब हम इनको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट कम्प्लीटली हो जाते हैं, इनटू आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. As a result, they give large amount of hydronium ion in the solution. Such a acid are called strong acids. Okay, are you getting? Some acids are there, that is the sulfuric acid, HNO3. When they dissolve in water, they dissociate completely into their respective ions and give large amount of hydronium ion in the solution. Such type of acid are called as strong acids. Like HCl plus water, it gives hydronium ion plus chloride ion. Same in the case with HNO3 plus water, it gives hydronium ion plus nitrate ion. Sulfuric acid plus water, it gives hydrogen ions plus sulfate ions. Their dissociation is represented by putting a single arrow towards the ions produced, showing their complete dissociation or ionization. Here we have putting single arrow for their dissociation. On the other hand, like acetic acid, formic acid, carbonic acid, phosphoric acid, etc., when dissolved in water dissociate only partially in the solution. Means ऐसे भी कुछ एसिड्स हैं like acetic acid, formic acid, carbonic acid and phosphoric acid. When they dissolve in water, they does not dissociate completely, but they dissociate partially. As a result, the hydrogen ions produced is small. Such type of acid are called as weak acid. वो एसिड जब हम जिनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं और वो लेसर अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस देते हैं. क्यों देते हैं लेसर अमाउंट में? बिकॉज दे डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली बट दे डिसोसिएट partially to give the respective ion, and such type of acid are known as weak acid. Example: acetic acid, formic acid, carbonic acid and phosphoric acid. Okay, and their dissociation is represented by putting a double arrow. Here you can see that I have put a double arrow, one this side and from this side. Okay, this means this arrow is showing that here the dissociation is partially, not completely. Okay, now this is the which kind of acid is this? This is the, yes, it is a weak acid. When it dissolve in water, it gives not, it does not dissociate completely, but it dissociate partially. Okay, and it gives, on dissolving, it gives acetate ion and hydrogen ion. This is the acetic acid, and on dissolving in water, it gives acetate ion and hydrogen ion. Same in the case with formic acid. When dissolved in water, it gives formate ion and hydrogen ion. Same carbonic acid, when dissolved in water, it gives carbonate ion plus hydrogen ions. Phosphoric acid gives hydrogen ions plus phosphate ions. Okay, now
we will try to understand another term regarding this chapter, that is the basicity and acidity. Here here you can see that HNO3, HCl, acetic acid, formic acid, these are all मोनोबेसिक. ओके, इनकी जो बेसिसिटी है वो क्या है, मोनोबेसिक है. वाई दे आर मोनोबेसिक? मोनोबेसिक बिकॉज the number of ionizable hydrogen atom present in one molecule of the acid is called its basicity. means वो हाइड्रोजन एटम जो कि ऑक्सीजन से, मतलब वो वाला हाइड्रोजन एटम उस मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है और जो आयनाइज हो सकता है, कितने नंबर ऑफ ऐसे हाइड्रोजन एटम आयनाइज हो सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेंगे उसकी बेसिसिटी उतनी कहलाएगी. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट? 1. हियर इट इज़ ऑल्सो 1. हियर इट इज़ ऑल्सो 1. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 दिख रहे हैं आपको. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. CH3COOH, हम बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो कार्बन की बैलेंसी है 4 होनी चाहिए, और ये वाला जो ये जो 3 हाइड्रोजन ये कार्बन से अटैच्ड है. ठीक है, तो हमको इसको काउंट नहीं करना. ये वाला हाइड्रोजन एटम जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये डिसोसिएट होगा, ये आयनाइज होगा टू गिव हाइड्रोजन आयन. सो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? सिंगल होगी, दैट इज दी मोनोबेसिक. सो ये वाले सारे क्या हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से अटैच है, इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस इन वाटर हाइड्रोजन आयन. सो इट इज अगेन मोनोबेसिक. सो बेसिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन्स atom present in one molecule of the acid is called its basicity. अब जैसे कि H2SO4 एंड कार्बोनिक एसिड में डाई बेसिक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयंस हैं. ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आयंस हैं. H3 ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड. यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट to get dissociate? there are 3. so it is tribasic. means बेसिसिटी क्या हो गई इसकी? 3 हो गए. आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, देन यू कैन राइट द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 3. और व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड? सो द बेसिसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 1. okay, monobasic, dibasic depends on the number of hydrogen ion, number of ionizable hydrogen ion present in one molecule of acid, that is the basicity. okay, बच्चों आजकल जो पैटर्न देखा गया है बोर्ड एग्जाम का, उसमें कुछ लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो डोंट थिंक दैट दिस मैम व्हाई यू आर टीचिंग ऑल दिस सिस्टम सिंस इट इज़ नॉट गिवन इन आवर सिलेबस. बट बच्चों आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो it's worthy for you. so okay, so please do understand, prepare your notes and please watch the video. आजकल अभी जो इस सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुमा घुमा के पूछते हैं बच्चों. सेम चीज़ रहती है बट द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज़ डिफरेंट. ओके, नाउ सेम स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस. अभी हमने देखा इस वाटर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. अब हम पढ़ेंगे इस वाटर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. सो व्हाट आर बेसिस? वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि बेस क्या होते हैं. As defined earlier, a base is a substance which when dissolved in water gives hydroxide ion in the solution, and the greater amount the hydroxide ion produce stronger is the base. बेस वो होते हैं जब हम इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये हमको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. बट बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिजोल्व इन वाटर डिसोसिएट कम्प्लीटली. सेम यहाँ पे एसिड की तरह है. वो बेसिस जब हम उनको पानी में डिजोल्व करते हैं, अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस तो क्या होता है, देन दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस बिकॉज एज ए रिजल्ट दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. पानी में डिजोल्व होने के बाद हमको लार्जर अमाउंट में ये हमको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं. दैट्स वाई वी कॉल देम स्ट्रॉन्ग बेसिस. जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस.
they are known as strong bases because on dissolving in water they give large amount of hydroxide ion and they give and they dissociate completely into ions. As in a case of strong acid, their dissociation is represented by putting a single arrow. जो इनका dissociation है हम कैसे show करते हैं? single arrow से. ठीक है, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जब हम उनको पानी में डिजोल्व करते हैं एंड they give hydroxide ion but they dissociate completely, okay, into their ions. On the other hand, water weak bases like ammonium hydroxide, calcium hydroxide, etc., they dissociate partially to give hydroxide ion. As a result, the amount of hydroxide ion produced in the solution is small. क्यों small रहा? क्योंकि ये पूरी तरीके से dissociate नहीं हुए into ions में. Okay, such bases are called weak bases. अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया? वो बेसेस जो कि पानी में डिसॉल्व करने पे पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, डिसोसिएट का मतलब आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, उनको हम वीक बेसेस बोलते हैं. और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करते हैं? डबल एरो से उनको रिप्रेजेंट करते हैं. वन पुटिंग टुवर्ड्स द आयन प्रोड्यूस एंड द अदर टुवर्ड्स द अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये one towards the ion produce and one towards the undissociated molecules. Understand, this is the ammonium hydroxide. When dissolved in water, it dissociate partially into ammonium ion and hydroxide ion. Same is the case with calcium hydroxide. When dissolved in water, what it produce? It dissociate into calcium ion and hydroxide ion, but पार्शियली. ओके, सेम अभी हमने जो एसिड में एसिडिटी पढ़ी थी, सेम इसमें क्या होता है? बेसिसिटी पढ़ी थी. सेम यहाँ पे क्या होंगे? मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा. नाउ एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी यहाँ पे इस केस में कैसे उसको हम पढ़ेंगे? एसिडिटी, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएटेड of one molecule of the base is called its acidity. Understand, the number of hydroxide ions produced on dissociation of one molecule of the base is called its acidity. आपको समझ में आया? सेम ये रहेगा जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? ओनली वन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन अवेलेबल है, देन इट इज़ नोन एज दी मोनो एसिडिक. एसिडिटी क्या हो गई उसकी? 1 हो गई. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है इसकी? ये एसिडिटी 2 है एंड इट इज डाई एसिडिक. और एसिडिटी इसकी क्या है? एसिडिटी इज 2. अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस. बच्चों, इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़े. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जो भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द नेम्स ऑफ सम वीक एसिड और द राइट द नेम ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एसिड. सो गो थ्रू इट, प्रिपेयर योर नोट्स. ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों. गुड बाय.